Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is direct and indirect speech. We are doing the session 3 and the topic is changes in pronoun. तो how the pronouns will be changed, कैसे आपको pronoun change करना है वो इस particular session में बताया गया है. The pronoun that is subject of the reported speech is changed according to the pronoun of the reporting verb or object of reporting verb. कैसे? I said, मैंने कहा तो मैं सब्जेक्ट हो गया. I am going to market. तो I said that, यहाँ पर I जो है I के लिए आया है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा. लेकिन यदि मैं कहूँ I said, inverted comma begins, he has gone to the market. तो यहाँ पर देखो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो प्रोनाउन है, यहाँ अगर मैं लिख के बताती हूँ I said to him, अभी देखो विल यू कम तो होगा I asked him if he, ये जो you है वो him के लिए तो he हो जाएगा, he would go. ये कम जो है वो go हो जाएगा. तो इस तरह से आपने देखा कैसे प्रोनाउन चेंज हुआ. First person pronoun in reported speech I, we, me, us, mine और our is changed according to the pronoun of reported verb. जैसे अगर he said to me, are you going home? तो he asked me if I was. you जो है मेरे लिए बोला गया है तो वो I हो जाएगा. तो इस तरह से जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो प्रोनाउन है उसमें वो चेंज हो जाएंगे और थर्ड पर्सन में. एग्जाम्पल्स देख लो. डायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई लिव इन चाइना. ठीक है, उसने कहा वो चाइना रहती है. तो ये जो आई है वो शी के लिए है. तो कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है. शी सेड दैट शी, ये जो आई को हमने शी लिखा एंड पास्ट में हम जाएंगे लिव्ड इन चाइना. आपको पता है प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है. तो यहाँ प्रोनाउन के बारे में है तो ये जो आई है वो शी के लिए है तो वो शी हो जाएगा. That speech, they said we love football. तो they said that they loved football क्योंकि जो we है वो they के लिए है तो they loved football. Sometimes the pronoun may not change. कभी कभी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा. यदि मैं अपनी बातें कह रही हूँ तो प्रोनाउन चेंज नहीं होगा. First person pronoun in reported speech is not changed. The pronoun of reporting is also first person pronoun. जैसे I या we. फॉर एग्जाम्पल I said I write a book. तो यहाँ पर प्रोनाउन चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों जगह I है. तो इनडायरेक्ट स्पीच I said that I wrote a book. हाँ, लेकिन टेंस जरूर चेंज होगा. जो प्रेजेंट है वो पास्ट बन जाएगा. डायरेक्ट स्पीच we said we did our job. यहाँ पर देखो we said लेकिन यहाँ प्रोनाउन we है तो ये लेकिन पास्ट है, वो पास्ट परफेक्ट बनता है, आपको पता है. तो we had done our job. Now second person pronoun in reported speech that is you, yours is changed according to the person of object of reporting verb in the indirect speech. अब वो you किसके लिए आया. I said to him are you going to cinema. तो you जो है him के लिए आया. तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में जो वो you है वो him के लिए आएगा. For example, he said to me, you have to come with me. उसने मुझसे कहा तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा. You have to come with me. तो जो you है me के लिए आया है तो होगा he told me that I had to go with him. Have had हो जाएगा क्योंकि पास्ट में जाएगा. She said to me, you can go. तो she told me that I could go क्योंकि you again me के लिए है. She said to him you can go. अगर थर्ड पर्सन हिम को बोला गया है she told him that he could go. तो ये you he हो जाएगा. तो इस तरह से आप देख रहे हो कैसे you जो है चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन.
Now third person pronoun in reported speech that he, she, it, they, him, his, her, them or their is not changed in indirect speech. तो ये जो है वो थर्ड पर्सन जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होंगे. जैसे he said she is a good girl, तो he said that she was a good girl. लेकिन टेंस चेंज होगा, is was हो जाएगा, प्रोनाउन सेम रहेगा. She said they have invited us, तो she said that they had invited them, right? अब they said he does not have the necessary qualification. They said that he did not have the necessary qualification. यहाँ आप कोई चेंज ही नहीं कर रहे हो क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. Now common rules for change of time in indirect speech. कैसे टाइम हम चेंज करेंगे? अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो दैट डे या द सेम डे हो जाएगा. यदि टुमारो है तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे हो जाएगा. यस्टरडे है तो वो द डे बिफोर या द प्रीवियस डे होगा. चेंजेस इनटू द डे बिफोर द प्रीवियस डे. नेक्स्ट वीक विल बी चेंज इनटू फॉलोइंग वीक. नेक्स्ट वीक हो या मंथ हो या ईयर हो उसे हम द फॉलोइंग वीक मंथ या ईयर करेंगे. लास्ट वीक मंथ या ईयर को हम प्रीवियस वीक मंथ या ईयर करेंगे. नाउ और जस्ट को हम देन कर देंगे. अगो को हम बिफोर करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में. हेयर को हम देयर कर देंगे एंड दिस को हम दैट कर देंगे. तो इस तरह से आपने देखा कैसे टाइम जो है हमने चेंज किया. नाउ अब थोड़े से एक्सरसाइज कर लेते हैं. What do you want? She asked him. तो यहाँ पर देखो ये you किसके लिए आया है? him के लिए आया है, राइट? और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर WH है जो कि एज ए ज्वाइनिंग क्लॉज हम लिखेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड. She asked him what he wanted, क्योंकि want का पास्ट फॉर्म क्या है? wanted. तो what he wanted, right? Are you coming with us? He asked me. अब उसने मुझसे पूछा क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? तो he asked me if I was going with them. याद रखिए जो मी है, जो यू है वो मी के लिए है. जब हम इसको खोलेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर जो है आर यू कमिंग विथ अस, आंसर इज इन यस और नो. तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है तो इसका जो ज्वाइनिंग क्लॉज होगा इफ होगा या वेदर होगा. तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो पास्ट में होगा. आई के साथ वॉज लगता है तो आई वॉज गोइंग विथ देम. अस जो है गोइंग विथ, यहाँ पे अस है तो देम हम लगाएंगे क्योंकि प्लूरल में है. ये याद रखना है. सेम होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल. ही आस्क्ड व्हेन डू यू इंटेंड टू मेक द पेमेंट, कब तुम्हारी इच्छा है पेमेंट देने की. ही आस्क्ड, आप मी लिख सकते हो. ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड, सी यहाँ पे व्हेन एज इट इज रहेगा. व्हेन आई इंटेंडेड टू मेक द पेमेंट. Do you come from China? said the prince to the girl. तो the prince asked the girl if she, यहाँ पे देखो girl है तो ये जो you है वो she हो जाएगा क्योंकि फीमेल है. If she came from China. The poor man exclaimed, will none of you help me? तो the poor man exclaimed, देखो यहाँ विल नन ऑफ यू हेल्प मी, आंसर यस और नो में है. तो इफ एनी ऑफ देम वुड हेल्प हिम, तो यू जो है वो देम हो जाएगा. एनी वन ऑफ देम वुड हेल्प हिम. विच वे शुड आई गो आस्क्ड द लिटिल गर्ल. द लिटिल गर्ल आस्क्ड विच वे शी शुड गो, राइट? ये जो आई है वो शी हो जाएगा. तो इस तरह से आपने देखा कैसे प्रोनाउन हम चेंज कर रहे हैं. नाउ आंसर आप देख लो. शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, क्योंकि यहाँ पर हम डू या डिड नहीं लिखते, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच लिखते क्योंकि ना हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है.
He asked me if I was coming or going with them. He inquired when I, he या she intended to make the payment. क्योंकि he inquired के बाद कोई प्रोनाउन नहीं है, उसने किससे कहा तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं या तो मुझसे कहा या उससे किसी बॉय से कहा या किसी गर्ल से कहा, तो उस हिसाब से हम प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं. द प्रिंस आस्क्ड द गर्ल इफ शी केम फ्रॉम चाइना. The poor man exclaimed whether none of them would help him. So, what have we learned? We have learned how you can change the pronouns in direct and indirect speech. और इसके लिए pronoun का जो चैप्टर है मेरा वो हमने पहले किया हुआ है, प्लीज उसको आप गो थ्रू करो तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे प्रोनाउन चेंज हो रहे हैं. आप उस लिस्ट को एक बार रिवाइज कर लो तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए करना. So, in the next session, I'll be with a new topic or the same chapter. Till then, have a good revision. Thank you.